Good evening, India. We are live. And good morning, US. We are live. So, when you have your evening, look how the sun is shining on my face. It's 9:38 a.m. and I'm so happy to meet you all for yet another episode of Wednesdays for Waste Warriors. WWW equals 5R. 5R, we must focus on the first three, that is refuse, reduce, and reuse. And the last one is recycle. But like we all know, people are focusing on recycle. And here we are trying to create awareness, educate people about how can we still focus on the first three R's and bring a great amount of change, sustainability in your lifestyle, and reach our goals, the SDG, Sustainable Development Goals. So I'm Anuja, founder of My Waste, My Responsibility and Iti Skill School Foundation. And we started this Wednesday series to highlight all the warriors who are working tirelessly in the field of waste management, waste reduction, making it as a resource and reusing it, repurposing what still has life, and new things can be made out of that. So today we have a very special guest who I've been following for, I guess, more than a few months, and I really love what she does. On a very small scale, because I have been doing similar things, and I think that's why I just love and I wanted to talk to her. And it's really amazing that she's our guest today. Waiting for her to join. And meanwhile, let me tell you that Iti Skill School wants to teach all these skills to the students so that they can bring a change by not creating waste, but rather than creating waste, they should be in the team of thinking, the critical thinking mindset, where they know how can that be used as a raw material or resource for something else. And when we will be able to do that, when people will be able to see everything around them as a resource to do something, create something, whether like last episode we had Nishtha, who was using industrial scrap as a resource to make and products, decor. Similarly, unless and until everyone starts looking at the scrap or the discarded items as hi. Hello, everyone. Hello. Here, actually, it is raining so heavily, Oh, and I was trying to connect, but was not be no able to. problem. So, I'm glad that sorry we are for joining me no late. problem. You're welcome that you joined. Thank you so much for being our guest today. Thank you for giving me this opportunity. Connect with like-minded people, share about the sustainability, and really, this is a great initiatives by you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. And I really want to start with welcoming you, thanking you, and coming to the name Banko Janko. And I would like you to tell us about how that came into your mind, and that will be your introduction. Please tell us. I'm really Okay. eager to do that. Yeah, great. So, Nissa, so everyone is very curious about the name Banko Janko. So, and everyone thinks how it came, and this is literally the
unbelievable for me also how it came up. But yeah, it was just a fun with me and my daughter. And so what happened, I will tell you the little story about this. So earlier I want to retire and all that things, but my daughter told me, Mom, you should start your own brand or something like that. And I said, at this age it is a challenge for me and all that things. And then but there is some pinching in my mind, I want to do for my brand and all that things. So I said, okay, let me learn, understand how I can, because in earlier I've done all the job working and for B2B and everything. So I don't know much about the making the brand or starting your own Yeah. companies. Uh-huh. And at this age, for me, it is really the very big challenge. But I love to accept the challenge and fight Exactly. with the challenge. Exactly. Good. So we when we were talking, and I said, yeah, Jill, I want to make the brand, but we need something unique name. Then I searched on the Google and everything. I floated in the all our friends group, and everyone can suggest the good name, and if we like it, we will give you some prize and something like that. But we didn't find it out. So one day, me and my daughter was walking, and I said, Jill, yeah, I'm not finding out good name. Yeah, I want some unique name. And what happened when I attended one event in the L&T for a branding. Then at that time, I learned a lot about the brand. Brand should be unique. Brand should be like, people love it. If it is like your identity, your Yeah. something. So, and then they were talking about the paperfry.com and all the things. I said, yeah, really, we don't know the meaning of the paperfry.com, but we love. And then we go and see what is the paperfry.com, right? So that still is in my mind कि I want something means इसकी वजह से I started कि I want to have some unique name. Sure. And then me and my daughter was working. I said, okay, I want some unique name, but I didn't find it out. Yeah, really, I have so many peoples, but still. So she said, okay, Mom, don't worry. If you, from my name only. I said, no, no, not from Jill. No, Jill, ne. Bully, no, not from Jill. You are making from the Junko. Uh, Junk. So my name is Jill. J. You have to make it from the J. Junko. So yeah, I said Junko is good, but who is going to buy Junko if I will write the name? कि Junko तो public को लगेगा क्या junk थोड़ी buy करेंगे हम, right? So no, I said no, no, no. I want the name from B. So then we were just brainstorming, and it happens. He said Banco. I said, wow, Jill, Banco, Junko. This is a rhythm. This will sound very exciting, but we need to find out the meaning of the Banco. And then I started googling okay, what is the Banco meaning, but I didn't find it. And at the end, one day at night, 12 o'clock, I find out in a Google. एंड आई एम लाइक दैट कि जो नहीं मिलता है ना उसके पीछे पड़ जाती हूँ उसका ढूंढ के ही रहती हूँ देन ऑल ऑफ सडन आई केम अक्रॉस इन गूगल दैट बंको मीन्स आर्ट डेकोरेशन क्रिएशन इन जापानीज uh-huh. आई सेड भाविनी यू आर डन Yeah. and like that the banko janko came up with both of us just a little walk and brainstorming and like that and you won't believe everyone when they meet so they told me, you are Banko Jago, right? I said, yes. So this is the identity created. And it is really in my heart, this is my baby and I love it. It's really, really, really fun story. And thank you so much. So now I'm introducing you. Everybody who's joined, please meet Bhavini Parik. She's the founder, creator of Banko Janko. And, you're a textile artist and a fashion designer. So I think that's where your experience comes in. Yes. So basically, in 1990s, I started the surface ornamentation work for the big companies, small companies, big brands, small brands, and export houses, and many more. During that time, I want to do something in my life, and I've done the home science. So everyone used to tell me, "कि क्या home science में रोटी बनाना सिखाते?" I said, I am going to prove myself that roti is a Yeah, necessary, right? bilkul. क्या करते हैं तो रोटी के लिए ही सब करते हैं हम राइट बट आई विल डू समथिंग एल्स वो तो मैं करूंगी वो तो दैट इज माय पेशन तो वो तो मैं करूंगी लेकिन स्टिल आई वांट टू प्रूव माय आइडेंटिटी कि होम साइंस इज नॉट ओनली द रोटी मेकिंग इट
makes you the entrepreneur. बिल्कुल. So like that, I started doing the surface ornamentations, and during that time, I worked, means trained more than 5,000 women. I provided them with the work, and started with a one family, and then in a week we had more than 10 families, and in a 1 month we spread a lot, and in a few years, you won't believe, it is from the Kolaba in Mumbai to Nala Sopara, everywhere in the Charles and everywhere the women used to come to us and take make to do the hand embroidery garments and everything. And yeah, I got so much love from the from I had done for the Lilale, Superstop, Anita Dongre, Vida Enterprise, Oh, nice. then Sugupta Garments, so many, and they had really helped us a lot. And whatever we are in this all women's, because of them, because they believed in us, and they gave us the work. And Yeah. so I used to do the designing, what to be done in that product, and then and keeping in my mind that I want to give the work to the women. Yeah. So accordingly, I design, and the work is given to these women. Like there's the hand embroidery and all thing done. So वो हैंड एम्ब्रॉयडरी करते थे, उन लोग मशीन से कुछ यूज नहीं करते थे, लाइक सिलाई. नहीं. Totally hand embroidery, bead work, mirror work, kantha stitch, mirror, so many things, and like that only we used to do. And We had a woman in Gujarat, patchwork. They were doing the patchwork and so many things. So this is my all family. That's good. And ये जो आप जिन women को देते थे काम, उन्हें ये पहले से आता था कि आप सिखाते थे शुरुआत से? नहीं, तो क्या हुआ था, इसके पीछे भी एक स्टोरी है. तो जब भी मैंने काम चालू किया था, तो मतलब मैं कंपनी में गई थी, तो उनको बोला था कि मुझे ऐसे काम दोगे क्या. तो उन्होंने बोला आपके पास कितनी वुमन है. तो मेरे पास तो वुमन कोई थी नहीं. हमारे फ्रेंड सब बोल रहे थे कि हम करेंगे. तो मैं बोली ठीक है, हम कुछ करके मैं लेके आई थी, राइट. लेकिन देन वो लोग ने बताया कि नहीं ये सब तो हम नहीं कर सकेंगे. दिन में मेरी जो मेड थी, उसको बोला मौसी आपके एरिया में सब लोग क्या काम करते. तो उन्होंने बोला कि अचार बनाते, पापड़ बनाते. मैं बोली चलो हम जाते. देन हम उनके साथ में गए, और वहां जाके एक लेडी को बताया कि भाई शर्ट दिखाया कि ऐसे बीड्स लगाना है, तो आप करोगे. तो उन्होंने बोला अरे नहीं दीदी, हमें तो नहीं आता है. तो फिर मैं बोली अच्छा, मतलब उनका जो इंटरेस्ट नहीं दिखा उनके बातों से. तो मैंने बोला इनको तो मतलब समझाना पड़ेगा, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट इज इट एग्जैक्टली. तो मैंने उनको बोला कि अच्छा आप क्या करते हो. तो बोले अचार बनाते, खाखरा बनाते, पापड़ बनाते. अच्छा, मैं बोली कितना कमा लेते हो. तो बोले 25 रुपया दिन का कमा लेते. तो मैं बोली आप 50 रुपया कमाओगे तो बोले हम करेंगे, लेकिन हमें आता नहीं. मैं बोली सुई धागा पकड़ना आता है, बाकी सब छोड़ दो हमारे पे. हाँ सुई धागा पकड़ना था, चलो ठीक है बैठ जाओ. हम लोग वहां पे ही बैठ गए. वहां पे वो चॉल सिस्टम जैसा था, उनके ही वो सीढ़ी पे बैठ गई वो, और वहां पे ही उनको सिखाना लगा कि मतलब सी ऐसे बीड्स लगाना है. एंड लाइक दैट द जर्नी स्टार्टेड. तो उन्हें समझ में आ गया कि सी एवरी वीमेन्स नोज द नीडल एंड थ्रेड. उनको थोड़ा तो आता ही है, खाली उनको एक सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं रहता है, राइट. तो बस वहां से हमारी जर्नी चालू हो गई, और फिर तो हमें पीछे देखे नहीं, क्योंकि सी एवरी टाइम दिस इज अ लर्निंग. एवरी टाइम, बिकॉज जो भी स्टिचेस आती है, सो जो भी होता है वो सिखाना पड़ता ही है. हमने समझो कोई गारमेंट में कुछ एम्ब्रॉयडरी की कुछ पैटर्न किए, तो वो भी उनको सिखाना ही पड़ता है. सो एवरी टाइम दे हैव टू लर्न एंड ग्रो, कि हाँ करते करते करके वो आगे बढ़ जाते. एंड देन लाइक दिस इट इज अ कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस. सो ऐसे होता है कि टेक्नोलॉजी में तो सीखना ही पड़ता है, लेकिन ऐसे नहीं है, सब फील्ड में सीखना ही पड़ता है ना. तो ये वुमन में एक चीज बहुत अच्छी होती है कि उनको पेशेंस होता है, उनको करना है. और उसमें क्यों होता है कि उनको उनके बच्चे लोग का दिखता है कि मतलब मेरे बच्चे के लिए मुझे कुछ करना है. तो वो एक इंटेंशन उनको बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाते हैं. और यू वॉन्ट बिलीव, आज उसमें मतलब मैंने जब भी चालू किया था, तभी मैं शायद 24 ईयर्स की हो गई. तो मतलब वो जो वुमेन्स थी वो 40-45 की रेंज की ऑलमोस्ट थी. आज बहुत सारे लोग है भी नहीं, बट उनके बच्चे के बच्चे लोग भी आज सीए हो गए, इंजीनियर हो गए, लाइक दैट. सो दिस इज द मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि चलो मतलब जिंदगी में ऐसे मजा किया ना, कि मतलब काम को एक काम नहीं समझा, एक एंजॉयमेंट हुआ कि आज वो लोग भी कहाँ से कहाँ है. बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग. मोटिवेशन जो रहता है
हम कोई भी काम किस वजह से करते हैं वो ही हमारा राइट, रिजल्ट बताता है। सही अगर बात है। हमने प्रेशर के अंदर, स्ट्रेस के अंदर जबरदस्ती करा तो वी विल नॉट गेट द बस वही था। डिजायर। हाँ, और लेकिन खुद इसमें इनको क्या था कि घर में बैठ के काम कर पा रहे थे। तो ये बहुत जरूरी होता है कि बच्चे लोग को हाँ संभालो, फैमिली को संभालो और घर में से काम करो। तो मेरे लिए एक वुमन एम्पावरमेंट मेरे लिए एक बहुत ही मोटिवेशन था, और वो ही बंको जंको के लिए था। मैंने बंको जंको बनाया तभी भी मेरे माइंड में एक ही चीज थी कि मुझे इन वुमेन्सों के लिए कुछ करना है और एनवायरमेंट के लिए। क्योंकि मैं ये टेक्सटाइल में काम कर रही थी तो मुझे पता था कि इतने सारे स्क्रैप्स होते हैं, हाँ, ये सब होता है। तो आई जस्ट कांट थ्रो इट ऑफ, बिल्कुल। क्योंकि हम इक्कत और ऐसे अच्छे अच्छे फैब्रिक के साथ में काम कर रहे थे। तो बंको जंको केम इट इज लाइक द बियॉन्ड द सस्टेनेबिलिटी, इट केम्स विद दिस थिंग्स थॉट ओनली कि वुमेन एम्पावरमेंट एंड एनवायरमेंटल बहुत सस्टेनेबिलिटी। ही ब्यूटीफुल थॉट है। और मैंने जब से आपको लास्ट ईयर से आपका ये सब देखना और फॉलो करना शुरू किया है, मुझे लगा था ओ माय गॉड, आई जस्ट वांट टू डू समथिंग विद हर, आई जस्ट लव व्हाट यू डू। थैंक बहुत यू। ही अमेजिंग मुझे लगता है। एंड जैसे कि अभी आप बहुत ही अमेजिंग तरीके से, आपको हर जगह रिकग्निशन मिल रहा है, अवार्ड्स मिल रहे हैं, बहुत सारे ग्रांट्स मिल रहे हैं, उसके बारे में आप बताएंगे कुछ? तो ये चीज बताओ, ये ग्रांट्स और सब कुछ है ना, वो मतलब awards or recognitions, whatever, so it is for the बंको जंको, राइट? या बंको जंको के पीछे जो लोग हैं ना, उसकी वजह से ये मतलब ये मेरे अकेले से कुछ नहीं होने बिल्कुल। वाला है, राइट? सो इट इज रियली द ग्रेट एंड thankful to everyone who has supported us in this journey. And whenever I'm selected by in any cohort or something like that, so they always say कि you have that patience and मतलब मुझे कभी पहले तो ऐसे लगता था कि मैं इंग्लिश नहीं बोल पाऊंगी, और आज की तारीख में ऐसे है कि मेरा हिंदी बोलने में इंग्लिश ही आ जाता है। इट इज लाइक सो। जब भी ये वुमेन्स के साथ भी हम काम करते हैं ना, तो बोलते हैं दीदी हमें इंग्लिश नहीं आता है। ऐसे नहीं, आपको आता है, आप चिंता मत करो। आपको हाई बोलना आता है, हाई। हेलो आता है, हेलो। थैंक यू आता है, थैंक यू। बस आप आगे आगे बोलने चालू हो जाओगे करके, वी इंस्पायर देम। कि मतलब एक एक जो नेगेटिव थॉट रहता है हाँ, ना कि नहीं आता है, वो हमें पीछे लेके जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। करके, और इसमें हमने बहुत लोगों ने हमें सपोर्ट किया है। एक मेरी कजिन सिस्टर का लड़का है यूएस में। वो लोग में सब ने मतलब हमें फुल फ्लेजेडली, मतलब आई कॉल देम कि अरे मुझे ये पीच में कैसे करना है। नहीं मासी, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, एंड देन अमेजिंग। सो रियली, या so there are so many peoples behind this Banko Janko, and really I'm grateful to God कि हमें इतना चांस दिया करने के लिए। और ये विमेन्स लोग एनी टाइम, आज भी अभी मैं बोलूँ ना, अभी भी मेरा बाल गिला है। एक्चुअली आई आई वेंट टू वन कम्युनिटी। आज हमारी कम्युनिटी सेंटर में एक हमने यूनिट में काम चालू हाँ। करवाया। तो उसमें मीटिंग था एंड इट इज रेनिंग हेवीली एंड आई वाज स्टक। ओ नो नो, सी ये होता है ना कि जहाँ चाह वहाँ राह। सो जब एक बार करने के लिए हम सोच लेते हैं तो पूरा यूनिवर्स कंस्पायर्स टू मेक इट हैपन, चलो तो बेटा, वैसा ही। या एग्जैक्टली ट्रू, एग्जैक्टली ट्रू। सो एज यू सेड, लेट मी टेल यू अबाउट द ग्रांट्स। मतलब उसके बारे में मुझे बताती हूँ कि अभी क्या हुआ था कोविड के टाइम पे। एक वीजा कंपनी जो है, हाँ उन्होंने एक मीन्स अवार्ड के लिए उन्होंने मीडिया में डाला था, और आई केम अक्रॉस समवेयर, आई डोंट नो हाउ कम, बट आई कांट रिकॉल इट जस्ट नाउ। एंड देन जस्ट आई अप्लाइड इन इट, कि मतलब मुझे तो ना था कि सब लोग कितने पढ़े लिखे होते हैं and मैं कैसे कर पाऊंगी, बट आई अप्लाइड इन दैट वॉट एवर आई नो एंड वॉट इज द माई रियल स्टोरी, आई अप्लाइड। एंड आफ्टर दिस उनके जो सब प्रोसेस थे, उसके बाद हमारा सिलेक्शन हुआ। होने के बाद भी एक दो बार इंटरव्यूज एंड सो मेनी थिंग्स हैपन। And during the interview, I spoke whatever they've asked me and everything, and they also they liked our whatever the work we are doing and everything, and that helped me a lot. Frankly speaking, that has given us the lots of the media support, and till today, the visa are supporting. Not about the financially thing I'm telling, but they want us to grow. दैट्स So कुछ भी रहेगा, कुछ भी cohort रहेगा अभी greener में. So I'm the part of the greener cohort, that is by the um, uh, this is TechnoServe, that is supported by the TechnoServe, and we are the part of that. Then another cohort, that is VV Grow. It is an international cohort, incubations basically, like.
and that is international, and that is also supported by the visa. So they directly or indirectly supports us and gives us a boost. बिल्कुल So that helps. And as I told you, every time you need to keep learning yourself. बिल्कुल Otherwise, you can't. So these things helps me to learn a lot, and helps in my development. Then another prizes we won in a Delhi, and that is also the great 1.5 lakhs prize money we have received from the Vijaya Lakshmi Das Award, and that is also really great for means great support for us. Then just now, yeah, just now यस recently we have received the Catalyst award, and that is by supported by sorry नो प्रॉब्लम that is also the funded by the IKEA group, आई and supported by the Seed and LBNP and so many. So this is really the great things happening. But yeah, we are looking for more and more support to grow a big community. And this is not only for the anything, but this is my missions for empowering the women and supporting them to grow. So आज भी हम गए थे ये वुमेन्स के ग्रुप को जिनको हमने ट्रेनिंग दी थी, and that program was supported by the World Trade Center, and after that we tried to give these women work and all that things, but due to some constraint and something was not be able to continue. But now from today we have already started, and we made the groups, and we had given the work to them, and we have connected with the producers, manufacturer, and these women's, and now they will continue to get the work and so many things. So the great thing रियली is ऑसम happening. रियली ऑसम मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ आपको ये पता होना चाहिए नहीं पता तो मैं Thank you. आपको बता देती हूँ आई एम रियली Thank रियली you वेरी बिग so much. फैन Thank you so मुझे much, मुझे भी यार. अपना असिस्टेंट बना लीजिए मैं आपको गुरु के जैसे एक्सेप्ट करती हूँ नहीं और नहीं, मुझे भी मुझे तो आप लोग के पास से सीखना है, ये यंग कम्युनिटी के पास से सीखना नहीं है. दिस इज व्हाट आई वांट टू डू विद इति स्किल स्कूल फाउंडेशन की जब हम बच्चों को करियर के बारे में बता रहे हैं तो हम उन्हें ये सिखाएं कि सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर या वकील ही करियर Exactly. नहीं है देयर आर हाँ. सो मेनी ऑप्शंस एंड जो हम इतना वेस्ट प्रोडक्शन हर जगह हो रहा है आप उसको देखो एज अ रिसोर्स एज अ रॉ मटेरियल फॉर व्हाट यू कैन डू तो जब हम क्रिएटिविटी इनोवेशन की बात कर रहे हैं तो वो अगर वो करने लग जाए तो हमारा ये प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए सो हम स्कूल से चालू करना चाहते हैं और फिर जब वो लोग Great. 12th पास करेंगे तो उनके पास वो स्किल आ जाएगी कुछ करने की तो उनको Perfect. गली गली भटकना नहीं पड़ेगा कि कहीं जॉब चाहिए वो खुद Exactly. जॉब सीकर की जगह जॉब गिवर बन सकते हैं कीवर बनेंगे और इतना अपॉर्चुनिटी है. सो एज यू सेड अबाउट दिस, आई विल टेल यू. सो माय एज माय मिशन इज अबाउट सस्टेनेबिलिटी एंड ऑल दैट थिंग्स. तो वो टाइम पे हम लोग भी आज की तारीख में भी हम लोग ज्यादा से ज्यादा है ना चिल्ड्रंस के लिए भी वर्कशॉप करते हैं अपसाइक्लिंग के. सो वी हैव डन इन द नेशनल पार्क पाड़ा. तो वहां पे जो विलेज की कम्युनिटी है तो उनके बच्चे लोग के लिए मतलब ऐसे नहीं, वो लोग को ऐसे नहीं होना चाहिए कि मतलब हम क्या करेंगे, राइट. और तो उनके लिए भी हम ऐसे वर्कशॉप करते हैं अपसाइक्लिंग के कि ये स्क्रैप है ना उसमें से भी आप बनाओ. तो उनके लिए हमने क्या किया था, स्क्रैप में से हमने फेरी लाइट्स बनाना सिखा था. फिर वो फेरी लाइट को हमने एक एग्जीबिशन में सेल किया. हाँ, वो तो बहुत ज्यादा, वो तो मतलब ऑल ऑफ सडन बनाया था, तो इतना ज्यादा भी नहीं बनाया था. हमने 6 ही बनाया था और उसमें हमने उनको बोला कि ये बनाएंगे ना और इसको सेल करेंगे अब, और फिर हम पिकनिक करेंगे. तो वो मतलब उसमें से हमको तो खाली 1500 रुपये आए थे क्योंकि वो छोटे ही कर किया था, लेकिन उनको इंस्पिरेशन मिले कि उन्होंने कुछ किया और गेन हुआ एंड देन दे विजिट. मतलब उनको ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ किसी ने डोनेट किया चलो जाके आओ, ऐसा नहीं. You worked hard, you earned, and then you visited that place. It is like so, And then वो भी एक एनजीओ के साथ में था. वो बहुत स्वीट लड़की है जो उधर बच्चे लोग को सिखाती है. फिर हम लोग ने वो होने के बाद उन लोग को एक सूरत में फैक्ट्री दिखाई जेडी टेक्स की. तो वहां पे डाइंग और सब कैसे होता है, कैसे प्रोसेसिंग होता है. फिर उसने भी विरल करके है, मिस्टर विरल, ही इज ऑल्सो ग्रीन मैन आई कैन से. तो उन्होंने भी इनको अपॉर्चुनिटी दी कि आप लोग को कभी भी कुछ काम करना है, कुछ लगता है तो यू कॉल मी एंड यू कैन कम एनी टाइम.
That's तो मतलब सी ये बच्चे लोग को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई और ऊपर से सीखने को भी मिला और ऐसे भी लगा। ऐसे ही मैंने बहुत सारे कॉलेजेस के साथ में आई एम द पार्ट ऑफ मेनी कॉलेजेस, सो आई डू द मेनी वर्कशॉप फॉर द कॉलेजेस। आई हैव डन फॉर द ड्यूरिंग द कोविड वी हैव डन फॉर द एनएम कॉलेज एंड in actors and so many online also. But yeah, design lab KJ Somaya design labs school, so I'm regularly doing it in every year. And you know, next when I go to the next year, the earlier student comes and meets me, ma'am, means you know we so, loved your class. so So that is things yeah. यार मजा आ जाता है कि हाँ, मतलब they learned to know something and they enjoyed बिल्कुल basically. बिल्कुल So they, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्क्रैप्स उनको देते हैं, उसमें से उनकी ही क्रिएटिविटी डेवलप बिल्कुल करवाते हैं। हम ऐसे नहीं बोलते इसमें से आपको बैग बनाना है। नहीं we have a proper planning ke how, so definitely we can do with your kids also or we can help you out बिल्कुल and definitely we will collaborate. या दैट We love to collaborate for the like minded people and for the right mission. थैंक यू। एंड उससे क्या होता है कि जब हम लोग बच्चों को कुछ सिखाते हैं तो जो उनका परिवार है वो पूरा परिवार उसका अपलिफ्टमेंट हो जाता है। जब हमारा इतना हम एसडीजी के गोल्स में बोलते हैं कि हमको पावर्टी कम करना है, मैल न्यूट्रिशन कम करना है, इतनी सारी जो चीजें हैं वो एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और स्किलिंग से बहुत सारे गोल्स हमारे फुलफिल हो जाते हैं। उनके रहने का तरीका बेटर हो जाता है, उनका कोई भी चीज को अप्रोच करने का तरीका एक विक्टिम के बदले में एक यू नो एक फाइटर बन जाता है उनकी स्पिरिट। सो इसलिए एक छोटी चीज बहुत सारे वंडर्स करती है। दैट्स व्हाई वी वुड लव टू डू इट। एंड हमारे सारे जो स्कूल्स हैं वो सारे स्कूल्स के बच्चे ऐसे ही हैं जो अंडर सर्व्ड अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी से आते हैं, रूरल हैं। I would love to. So definitely arrange it. I will come, surely. And that will be the fun. I love, you know, when I've done in one Kolaba school and there's small kid and so many, and they learned a lot. They enjoyed it so fun कि मतलब हम भी ऐसे लगता है कहाँ हम स्वर्ग में आ गए, you know. So and I love the kids. So no, मजा आ जाता है ऐसे। आई नो वर्ड्स टू, बट या डेफिनेटली आई वुड लव टू, श्योरली। और वो टाइम पे ना आज की तारीख में मुझे एक याद है कि जब भी बच्चे लोग को सिखा रहे थे तभी मतलब कुछ बात हुई थी। माई डॉटर इज अ पायलट, सो आई सेड कि मतलब किसी ने बोला कि इनकी, हाँ वो वहां की वो थी ना, उन्होंने बोला इनकी लड़की पायलट है। वो छोटे छोटे बच्चे लोग को तो पायलट मतलब ना एकदम एक्साइटमेंट हो जाता है। फिर मेरा प्रोग्राम ट्रेनिंग हो गई ना, फिर एक छोटा सा लड़का के आते मुझे बोलता है कि दीदी मुझे भी पायलट बनना है। आई फिर वाह कि एक विजन मिल गया। मतलब उनके पास हमें उनको सिर्फ एक थॉट, एक बीज डालना है उनके मन में, डालना है। राइट राइट। अपने आप जितने हम उनको ये अपॉर्चुनिटीज देंगे इंटर्नशिप की या हैंड्स ऑन लर्निंग की या एक्सपीरियंसेस की, वो बीज अपने आप पौधा और पेड़ बनते जाएगा। यू आर डूइंग रियली गुड वर्क यार, रियली। आप मतलब रूट्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं तो फिर अपने आप ट्री तो ग्रो होगा ही और फूले फलेगा। बिल्कुल, क्योंकि हमें उन्होंने ये भी सिखाना है कि फेलियर इज नॉट अबाउट गिविंग अप। फेलियर इज अ गुड एक्सरसाइज, उससे आप मजबूत बनते हो। फेलियर से आप नेक्स्ट सीख सकते हो कि अच्छा मैं क्यों फेल हुआ। जो क्वेश्चन व्हाई हम जब पूछते हैं तो ही हमको हमारा पर्पस मिलता है। सो हमें तो ये नहीं बोलना कि अरे तुम इसमें फेल हो गए, ये अच्छा नहीं हुआ तो तुम एग्जैक्टली। सो नेवर। नहीं तो ये चीज जो तू बोल रही ना फेलियर का, तो मुझे भी वो जब भी मैंने ये काम चालू किया था 1990s में, तभी मेरा भी वही था कि मतलब फर्स्ट टाइम मुझे माल मिला, मैंने करवाया इन लोग के पास से। मुझे भी नहीं पता था क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, यू नो, एंड आई डोंट हैव द एक्सपीरियंस इन दैट फील्ड। तो मेरा भी पूरा फर्स्ट लॉट पूरा रिजेक्ट हुआ था। एंड मेरे भी हस्बैंड ने बोल दिया कि भाई ये सब तू बंद कर दे, ये सब कुछ नहीं करना है। सो दैट वाज माय फेलियर। बट वो टाइम पे एक चीज थी कि मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मतलब आई डोंट नो हाउ बट आई वांट टू डू इट, हाउ आई एम गोइंग टू डू। क्योंकि इतना फाइनेंशियली भी आई वाज नॉट सो स्ट्रांग, मुझे भी जीरो में से ही करना था। एंड वो जमाने में किधर वुमेन्स इतना काम करती थी और अलाउड भी नहीं था, बहुत कुछ था, लाइक मेनी चैलेंजेस। तो हमारे लिए भी हारी थी, लेकिन उसको कितना भी पकड़ के छोड़ा नहीं। और फिर
मतलब आगे बढ़ते गए। तो सी आई तो टेल एवरीवन कि लाइफ में तो बहुत कुछ चैलेंजेस आएगी। मैंने मेरी लड़की को भी बोला था, उसकी लाइफ में भी बहुत चैलेंजेस थी। पायलट होने के बाद 10 साल तक उसको जॉब नहीं था। फिर उसको हमने हमारी कंपनी में एग्जीबिशन करना चालू किया। उसने एग्जीबिशन किया ना, तो वो जो हमारे साइड कट थे ना, उसमें से हम उसको गारमेंट बना के देते थे, और वो ब्रांड आज मैंने चालू कर दी, राइट। सो कहाँ से कहाँ होगा वो अपने बिल्कुल को पता नहीं है, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल है। बिल्कुल, इसलिए हमें करते जाना है। तो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि जो हार है ना, उसमें कुछ अच्छा ही होने वाला है, बिल्कुल तो होगा ही होगा। बिल्कुल, बहुत ही अमेजिंग तरीके से आपने कहा। हार जो होती है उसमें एक लेसन छुपा होता है, अगर हमने वो लेसन नहीं लिया तो फिर वो सही। हमारा एक हैबिट बन जाएगा और पैटर्न बन जाएगा लाइफ में कि सेम चीजें रिपीट होंगी। सो हमारे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए। मेन स्ट्रेंथ ऑफ बंको जंको, व्हाट इज सस्टेनेबल फैशन? व्हाट इज अ सस्टेनेबल हाँ फैशन? ओके, सो सी सस्टेनेबल। सो आज की तारीख में क्या हो रहा है कि फैशन, अभी देखो ये फास्ट फैशन की वजह से सस्ते कपड़े मिलते हैं और सब कुछ होता है, राइट। आज की तारीख में टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज द हाईएस्ट पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री आफ्टर द एग्जैक्टली। एविएशन। तो क्या होता है कि मैक्सिमम टेक्सटाइल्स आजकल आप देखो कि आप एक दो दो चार दो तीन बार पहनोगे फेंक दोगे, क्योंकि सस्ता है, इजी है ना। इजी इजी हो गया है, अभी सस्ता वाला कपड़ा मिल गया, यूज किया फेंक दिया। वो जो कर रहे हैं ना, इसके पीछे बहुत सारा पॉल्यूशन क्रिएट होता है, बिल्कुल राइट। अभी इसमें भी नॉट ओनली वन थिंग कि सस्ता है फेंक दिया, लेकिन इसमें पीछे भी बहुत सारी स्टोरीज होती है। लाइक सी, अभी एक टेक्सटाइल बनता है, तो टेक्सटाइल के लिए कितना कितना एनर्जी लगता है, उसके डाइंग के लिए कितना वाटर लगता है, मैन्युफैक्चरिंग में इलेक्ट्रिसिटी लगती है, उसके बाद उसको आगे के प्रोसेस में भी कितना या एनर्जी और कार्बन इमिशन क्रिएट होता या है, राइट। फर्स्ट या ऑफ ऑल वो। सेकेंडली, ये जो सस्ते कपड़े बनते हैं उसमें ज्यादा करके पोलिएस्टर और सब यार्न्स रहते, सिंथेटिक बिल्कुल यार्न्स, जो डिकम्पोज बिल्कुल नहीं होते। बिल्कुल मतलब उसको कहाँ पे भी फेंको, वो जमीन में या किस में भी डिकम्पोज नहीं होते, या और वो पॉल्यूशन क्रिएट या करते हैं, और उसकी वजह से कार्बन इमिशंस क्रिएट होता है। सी, नाउ इफ यू कैन लर्न इन लर्न अबाउट द एनवायरमेंट एंड एवरीथिंग, यू विल कम टू नो कि एसिड रेन हो रहा है, सब कुछ, राइट। या सो ऑल दिस थिंग्स इज हैपनिंग नाउ, दिस इज द राइट टाइम कि एज अ कंज्यूमर वी हैव टू डिसाइड कि कौन से कपड़े सही है और मेरे लिए क्या। कभी क्या होता है, हमें लगता है कि ये कपड़ा जो हैंडलूम्स और सब है कि ये महंगा है, लेकिन उसमें मेहनत लगती है उसमें, और वो अच्छे फाइबर्स के बने, कॉटन के बने, लिनन के बने, ऐसे अलग अलग फाइबर्स के बने, जो डिकम्पोज भी इजीली हो जाते हैं। ऑफकोर्स कॉटन ग्रो करने में वाटर लगता है, सो देर आर सो मेनी थिंग्स, या बट स्टिल उसके डिकम्पोजिशन एंड वो सब कुछ बहुत अच्छा है। अच्छा, डाइंग्स में भी नेचुरल डाइज और वो सब कुछ यूज होता है, तो वो जल्दी डिकम्पोजिंग हो जाते हैं, और रिसाइकलिंग और उसमें भी इजी हो जाता है, जब भी पॉलिएस्टर और सबके लिए रिसाइकलिंग भी डिफिकल्ट हो जाता है। बट या नाउ मेनी टेक्नोलॉजीज इज कमिंग एंड सो मेनी थिंग इज हैपनिंग। सो सस्टेनेबल फैशन इज लाइक दैट कि इट शुड नॉट हार्म टू द प्लेनेट, इट शुड नॉट हार्म टू द एनी राइट। फेयर वेजेस मिले, अभी ये जो सस्ते कपड़े मिलते हैं तो उसके उसमें फेयर वेजेस भी कहाँ होते हैं, 10 रुपए में कपड़े सिला लेते हैं, बिल्कुल और ना सस्ता बनाना है, तो उसमें तो एक शोषण हो रहा है, राइट। बिल्कुल तो बिल्कुल उससे अच्छा हम थोड़े कपड़े पहने, अच्छे कपड़े पहने, जिसकी वजह से जो एनवायरमेंटल को अफेक्ट नहीं करे, जो उसमें बेनिफिट हो, जो वर्कर्स को हो, सोसाइटी को हो, एवरीवेयर देयर इज अ विन विन सिचुएशन। बिल्कुल अभी सस्टेनेबल फैशन में भी बहुत सारी कैटेगरीज भी होती है, जैसे लाइक different types of the fibers now coming up with hemp fibers, linens and so many things, right now या banana fibers and so many fibers. बिल्कुल Secondly, swap, कि हम लोग क्या करते हैं कि अभी यूज थ्रो कर दिया तो वो फेंक दिया, हम नहीं देखते, लेकिन स्वैप में क्या होता है कि चलो आज हमने पहना, कल हमारे हाँ ये दूसरी फ्रेंड्स पहनती है, ये पहनते हैं, तो मतलब एक दूसरे से या स्वैप करते। सो नाउ it is now there are many platforms also, they are also doing the swap and everything, and now people are very open with all their things, and this is, I feel कि this is not the मतलब ऐसे कोई भी अपसाइकलिंग या कुछ भी नया नहीं है, बट उसको एक्सेप्टेंस करने का एक अलग तरीका या है उसकी वजह से। जैसे अपसाइकलिंग तो हमारी मम्मी भी करती थी, वो बिल्कुल हमारे घर में जो भी समझो टॉवेल्स थे वो जूने हो गए, उसको काट के वो बर्तन के लिए, पोछा के लिए यूज करते थे, राइट। उनकी साड़ी थी तो उसमें से गोदड़ी बनाते थे, बिल्कुल मतलब दे यूज टू डू ऑल देयर थिंग्स। लेकिन एक टाइम आ गया जो लास्ट 20 ईयर्स, यूज थ्रो, सस्ता है, मिल रहा है, फटाफट लो, फेंको, जाने दो, उसका क्या हो रहा है पता बिल्कुल नहीं, और उसकी वजह से डंपिंग हो गया। ये डंप हो गया ना, जो
वो बहुत बहुत सारा पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है. बिल्कुल एंड नाउ वी नीड टू बी कॉन्शियस एज अ कंज्यूमर, और हमारे आगे नेक्स्ट जनरेशन के लिए हमें करना पड़ेगा. सो आई रिक्वेस्ट हियर एवरीवन, बी कॉन्शियस कंज्यूमर. वॉट एवर यू डू, वॉट एवर यू बाय, सो be conscious about all that things. कि it should not harm to the planet, or it should be more consciously choice. बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लैंडफिल्स जो हैं वो सब इन्हीं चीजों से भरे हुए हैं. Right. ओवर 40% जो होता है प्रोडक्शन के बाद में, जो कपड़े पहने भी नहीं जाते हैं वो सीधे लैंडफिल में चले जाते हैं बिकॉज ऑफ रिजेक्शन. और अभी आपको मैं बताऊं, जब भी कटिंग होता है ना, तभी 15-15% ऑफ द टेक्सटाइल साइड का जो लैंडफिल में जाता है. राइट. तो व्हाट वी डू, वी यूज दैट स्क्रैप्स एंड कन्वर्ट इट इनटू द प्रोडक्ट. मतलब हम कोई भी कपड़ा भी वेस्ट नहीं करते. सी, ये जो है, ये ऐसे, ये भी, ये मेमो बॉक्स है. राइट. तो ये भी स्क्रैप में से बना है, लेकिन एक ब्यूटीफुल आर्ट पीस लगता है. बिल्कुल बिल्कुल. या जो जिनको आर्ट का टेस्ट है वो हिसाब से. अभी ये जो है ना, सब कैटलॉग के पीसेस थे. उसका हमने कॉस्टर्स बना दिया. ये अभी मेरे घर में हूँ, तो मेरे घर में भी सब जगह पे अपसाइकलिंग ही रहता है. एंड इफ यू कैन सी माई बैक वॉल, मेरे पीछे जो ये वॉल देख रहे हो पूरी, ये पूरी वॉल स्क्रैप में से, जो वॉलपेपर्स रहते हैं उनके कैटलॉग्स होते. तो एक फर्निशिंग हाउस ने हमें बहुत सारे कैटलॉग्स दिए थे, तो उसमें ये वॉलपेपर्स के थे. तो हमने सोचा कि या तो हम उसमें से कोई कवर्स बनाएंगे, मतलब, लेकिन कितने कवर्स बनाएंगे और किधर, मतलब यू नो. तो उससे अच्छा मैंने सोचा मेरे घर में मैं वॉल बनाती हूँ पहले. एंड इट केम आउट सो वेल, सो ब्यूटीफुल, कि मतलब दिस रूम बिकेम माई आर्ट स्टूडियो. ओके, अब मैं भी आपको कुछ दिखाती हूँ. ये देखिए. ओह वाह. ये जो बैग है. ओके. ओह, this दिस इज अपसाइकल. आई कैन सी. दिख रहा है, स्टिचिंग जॉइंट दिख रहा है. वाह. This was my so beautifully made. Wow. Okay. पैंट से की स्कर्ट में से बनाया, पैंट में से. स्कर्ट में. वंडरफुल. वंडरफुल. सी, सो ब्यूटीफुल. उसका जो ये पट्टा था उससे ये बनाया. And I can carry it all the time with me. This belongs to my sister who passed away, जिसकी मेमोरी में मैंने इति स्कूल शुरू किया है. तो अब ऐसा लगता है ना कि हम अपने लव्ड वंस की मेमोरी को कैसे प्रिजर्व करके रखें, सेव करें. तो मैंने ये उसका फेवरेट स्कर्ट था और उससे मैंने ये बैग बनाया. और उसमें so she is always with you. Yeah, and दूसरे लोग भी पूछते हैं because it looks very cute. So अरे ये कहाँ से लिया? मैंने कहा नहीं लिया नहीं, बनाया है. और अब उसके अंदर मैं थोड़ा सा पेंट करके वो फ्लावर्स को कुछ वो करूंगी, लेकिन वो इट्स वर्क इन प्रोग्रेस. जैसे जैसे टाइम. यस, बट लवली. सो बहुत सारे तरीके से हम लोग सेव कर सकते हैं और हमारे हाथ में ही रहता है. दैट चॉइस और डिसीजन हमारे ही हाथ में है, क्योंकि हम लोग कंज्यूमर है ना. Exactly. ये यूज एंड थ्रो इज अ वेरी बिग डिजीज जो हम लोगों को अपने लाइफ से हटा देना होगा. अनलेस इट इज अ मेडिकल हॉस्पिटल या ऐसे कोई जगह जहाँ पे बहुत कुछ यूज एंड थ्रो की जरूरत है. उसके अलावा हमें अपने डेली लाइफ में कोई चीज के लिए यूज एंड थ्रो की जरूरत नहीं है. ट्रू. तो एक कॉन्शियसनेस होना बहुत जरूरी है. अदरवाइज मतलब सी, अभी हम भी क्या है कि हम खाते कितना है जितनी हमें जरूरत है. राइट. अभी ऐसे नहीं कि ये सस्ता है तो चलो मैं आज 10 बॉटल पी लूं. ऐसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते. तो कपड़े में क्यों ऐसा कि हाँ सस्ता है चलो मैं 10 ले लूं, ऐसे क्यों, है ना. तो ऐसे होना चाहिए जितनी अपनी कैपेसिटी है ना, मतलब नॉट अबाउट द मनी बट अबाउट आर, मतलब हमारी, या वी कैन से द अर्थ की कैपेसिटी है, वो देखो पहले, और फिर बाय करो कि नहीं मतलब मैं ये कितनी बार पहनने वाली हूँ. अदरवाइज आई एम गोइंग टू थ्रो इट ऑफ. डोंट डू दैट. ऐसे मतलब कितने साल हो गए कॉलेज छोड़े हुए मुझे, लेकिन मेरे पास अभी भी मेरे कॉलेज वाले जो टी शर्ट्स और वो कुर्ते हैं तो वो मैं पहनती हूँ. और कुछ मैंने मेरी डॉटर ने ले लिया है कि ये मैं पहनूंगी. सो हम लोग वो टी शर्ट को स्वैप कर करके, मैं, मेरा बेटा, मेरा भाई, हम लोग सब वो हमारा सर्कल में रहता है. एंड कुछ दिन उसने पहन लिया, उसके बाद में किसी और ने पहन लिया. इट जस्ट इज. और जैसे जैसे कपड़े पुराने होते हैं ना कॉटन के, वो और सॉफ्ट होते जाते हैं. सो इट्स रियली गुड टू वेयर.
तो राइट। थोड़े महंगे कपड़े रहते हैं लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, वो टिकते ही ज्यादा है, ऐसे या हो जाता है। मुझे याद है कि जब हम बॉम्बे में रहते थे, वहां पर मेरी जो फर्स्ट चाइल्ड है, मेरी डॉटर, वो तब हम बॉम्बे में रहते थे। तो अच्छा। हम खार में रहते थे और पास में लिंकिंग रोड होता था। हाँ। तो लिंकिंग रोड में ना ठेलों पे उन लोग ये ओल्ड नेवी और ये सब को जो भेजते हैं ना, तो उसके रिजेक्ट कपड़े ठेलों पे बेचते थे। हाँ। और राइट राइट। मतलब मैंने वो उतने 20 साल पहले वो जो लिए थे पजामे टी शर्ट, वो जो अपन लोग छोटे बच्चे लोग यस बड़े यस। हो जाते हैं, तो सब मैं वहां से लेती थी। एंड वो कम से कम 4 और बच्चों ने पहने, इतने अरे मजबूत, वाह। क्योंकि वो कभी फटते नहीं, इतना फटते बुरा नहीं है। किसी का यूज नहीं होता, अच्छी स्टिचिंग होती है, बट कोई फैक्ट्री क्वालिटी इंस्पेक्शन में वो रिजेक्ट हो गया, सो दैट्स इट। सो हमें ये देखना है कि जब हम थ्रिफ्ट की भी बात करते हैं, पीपल रियली, कुछ लोग तो थ्रिफ्ट को एक्सेप्ट करते हैं, बट बहुत सारे लोग हैं जो बड़े नाक मुंह चढ़ाने लगते हैं कि हम सेकेंड हैंड नहीं यूज करेंगे, किसी ने पहना हुआ है, वी हैव टू थिंक अबाउट इट, क्योंकि जितना ज्यादा कंज्यूमर मांगेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा। और जब हम होगा। सस्टेनेबल गोल्स की बात करते हैं, तो जो सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल है, जो हमारे यस सबके मिलकर करने पर ही हम उसे अचीव कर सकेंगे। यस। अदरवाइज देयर इज नो वे वी कैन अचीव दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बाय 2030, जो राइट हमारा राइट। गोल है। सो वी आर सो also working towards this sustainable development goal 12, responsible consumptions productions, यस, then 13 also the climate actions. यस, This is our mission to for this mitigating the and support for working towards the environmental sustainability. या And क्लाइमेट एक्शन तो अब हर, दैट इज व्हाट इज वन ऑफ द, क्या बोलते हैं उसे, जैसे दूध में पानी मिल जाता है और अलग अलग नहीं हो सकता है, उस तरीके से अगर हमने अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अपने लाइफ में उस तरीके से मिला लिया कि हम उसे सेपरेट नहीं कर सके, तो एवरी गोल के लिए हम कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट जरूर कर सकते हैं, एवरी गोल। तो exactly exactly वो exactly बहुत जरूरी है। सो थैंक यू सो मच। अब आप directly बताइए। or indirectly. हाँ बिल्कुल, Yes. एग्जैक्टली। इवन जब हम पावर्टी की बात करते हैं या क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, तो अगर हमने अपने, जो हमारे स्टाफ काम करता है, उनको अगर फेयर प्रैक्टिस से बराबर जो उनको मिनिमम वेजेस के हिसाब से दिया, एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया, तो दैट अगेन यू आर एलिविएटिंग पावर्टी, आप उसके लिए गोल के लिए काम कर रहे हो। फूड वेस्ट इज अनदर बिग प्रॉब्लम। Perfect. Perfect. तो एक और क्वेश्चन आपके लिए आया है कि garments are the second most polluting industry, like you said, आपने already बताया। So what is your sustainable model for designing clothes? आपको क्या लगता है कि जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं उनको क्या चेंज करना चाहिए? हाउ कैन वी रिड्यूस दिस वेस्ट ऑफ फैब्रिक एंड मटेरियल एंड गारमेंट्स? Oh, wow. Very interesting, and really great. So first of all, as they said कि हम कैसे हमारे sustainability में वो करते हैं, तो first of all, how the Banco Janko works कि हम क्या करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, उनके पास से स्क्रैप लेते हैं, एंड वो जो स्क्रैप है उनको डिफरेंट साइज शेप और उसके हिसाब से सेग्रीगेशन होता है, एंड देन उसमें से फैब्रिक्स बनते हैं। तो वो जो फैब्रिक्स बनते हैं वो वुमनों के कटिंग बटिंग करके वुमेन्स को देते हैं, जो वो फैब्रिक्स बना के देते हैं। देन उसके सैनिटाइजेशन और वो सब कुछ होता है, देन उसके बाद उसका प्रोडक्ट डेवलप होता है। उसमें भी हमारा कटिंग्स होते हैं, तो उसमें भी साइड कट तो बचने वाले हैं, हाँ क्योंकि वो गारमेंट का जो एक फर्मा रहता है। बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं, उसको भी वो फेंकते नहीं या है, वो वाले को भी इस तरह से, जैसे हमने बताया छोटे छोटे चिंदी भी है, हाँ राइट, उसको भी इस तरह से ज्वाइन करके उसके भी फैब्रिक्स बनवा देते हैं, मतलब वेस्ट नहीं करते। बिल्कुल। और फिर वो उसमें भी कोई ऐसा होता है जी जो यूज नहीं होता है, उसका भी हमारे पास टन में माल होता है ना, उसको हम सीड पेपर या थैंक यू कार्ड बनवा देते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट के लिए हम यूज करते हैं। हाँ तो उसकी स्टोरी पेज, थैंक यू कार्ड, वो सब बनता ग्रेट। है, एंड देन वी गिव इट with our product to the consumers basically। तो वो उसमें से भी सीड पेपर्स होते हैं, तो सीड मतलब हाँ प्लांट्स ग्रो होते हैं, तो इस तरह से
तो वी वर्क इन अ जीरो वेस्ट पॉलिसी के, और ऐसे हैं कि कभी जब भी हम किसी को पिच करते थे तभी हमें बोलते थे कि आपकी तो बहुत सारी कैटेगरी है, लेकिन हमारा मिशन वो था कि हमें कुछ भी फेंकना हाँ नहीं था। और वो टाइम पे कोई सब लोग कोई ये टाइप का कर नहीं रहे थे, तो हमें तो कुछ करना ही था, राइट। तो या हमारे लिए वो एक बिजनेस, मनी मेकिंग बिजनेस नहीं था, हमारे लिए एक पैशन का था। तो हमने उसमें से एक्सेसरीज भी बनाना चालू किया, उसमें से होम फर्निशिंग भी बनाना चालू किया, मतलब बहुत कुछ उसमें से हम, वी नॉट ओनली इनटू द गारमेंट थिंग्स बट वॉट एवर द वे थिंग्स वी कैन मेक इट, वी वर नॉट यूजिंग थ्रोइंग आउट, एंड वी आर मेकिंग, मतलब हम उसमें से बनाते थे प्रोडक्ट। सो ये हमारी सस्टेनेबिलिटी की बात हुई। तो ये हमारे सस्टेनेबिलिटी में एक आता है कि वी वर्क ऑन अ जीरो वेस्ट। सेकेंड आता है हम वी वर्क विद द वुमन एम्पावरमेंट। एंड एज वी सेड कि हम, हमारा भी ऐसे नहीं होता है कि हम थाउजेंड्स ऑफ पीसेस बना के रख देते, हम लिमिटेड स्टॉक बनाते हैं, बिकॉज लिमिटेड स्टॉक्स स्क्रैप्स होता है, या उसकी वजह से ऐसे थाउजेंड्स ऑफ पीसेस नहीं बनते। तो अर्लियर डेज वी वर ऑल्सो फेसिंग द चैलेंज और द ई कॉमर्स एंड एवरीथिंग, या बिकॉज वी डो नॉट हैव द quantity of the products, right? So but we said, as we said, this is not only for the money making things. If I'm working, it is going to be definitely generate the revenue in a sometimes, right? But I want to be more do consciously या about this. या And this helped us to sustain ourselves. Then as she said ki what she or he, sorry, so as the second questions, I would like to say ki how the manufacturer or everyone, so you know what happens, still the garment industry are not at all conscious, first of all. So what, there are many categories like the corporates and या everything. So we will speak about the corporates in the second stage. First stage, we will speak about the manufacturer or the garment manufacturer or the wholesaler, whatever या maybe. Garment manufacturer or the brands, right? So in the garment manufacturers or the brands, I would like to say कि जो आपके पास आप क्या होता है, because we were also doing the white labeling for the companies, right? So हमें भी वो टाइम पे ऐसे लगता था कि इसको क्या करेंगे हमें, और हमारे पास वो टाइम नहीं है कि हम इसका कुछ करें, उससे अच्छा चिंदी वाले को दे दो ऐसे, या राइट। लेकिन जब भी मैंने, मेरी लड़की ने एग्जीबिशन चालू करना किया और मैंने वो प्रोडक्ट बनाना चालू किया, तभी हमें पता चला कि इसमें से बहुत सारे क्रिएटिव पीसेस बन सकते हैं, एंड या इट वाज हैपनिंग। सो लाइक दैट, अभी अभी मैन्युफैक्चरर, उनके पास सबसे पहले तो वो टाइम नहीं है करने का, एंड दे आर या लिस्ट वोदर। सेकेंडली, उनको इसमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है कि मतलब चलो ये मैं करूंगा तो मुझे कुछ जीएसटी बेनिफिट मिलेगा, कुछ गवर्नमेंट का कुछ बेनिफिट मिलेगा, बिल्कुल मतलब इफ आई एम गेटिंग, मुझे कोई फायदा हो रहा है तो मैं करूं, मुझे कुछ नहीं हो रहा है मैं क्यों करूं, बिल्कुल जिसको जो होना है होने दो, राइट। ऐसा हो रहा है। तो वही हो रहा है कि मतलब किसी का कोई फॉल्ट की कुछ नहीं, मतलब एक सिस्टम बन गई है कि मैं उसको क्या करूंगा, फेंक दो, या जाने दो ऐसे। या लेकिन नाउ इफ दे वांट टू बिकम द कॉन्शियस एंड इफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज विल कम, then there will be the more conscious production will be there. So what happens, see now what can be done कि उनके पास जो भी स्क्रैप है, वो स्क्रैप को कैसे यूटिलाइज करना है ना, वो एक सिस्टम होना चाहिए या कि ये उनको कहाँ से कहाँ डाल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, वो एक सिस्टम होना बहुत जरूरी है। जैसे हम बतावे कि जैसे पार्ले अपना बिस्लेरी और सब में था कि मतलब वो बॉटल्स पहले प्लास्टिक का है तो कहाँ डाला, कैसे डाला, बिल्कुल मतलब उसका एंड लाइफ क्या है प्रोडक्ट का, कि मतलब उनको कलेक्शन सेंटर बनाना पड़ेगा, उनको ये करना पड़ेगा, ऐसे हो गया, राइट। तो ये टेक्सटाइल में भी ये सब आने की बहुत जरूरत है, लेकिन अभी भी स्टिल देर इज अ लॉन्ग वे टू गो, डेफिनेटली। एंड बट या देर इज सो मेनी थिंग्स कैन बी डन, कि मतलब उनको नहीं करना है तो उनको किसी के साथ कोलैबोरेट कर लो, हाँ वो लोग को दो, वो लोग कलेक्शंस क्रिएट करे, आपको ब्रांडिंग का ना, मतलब आपकी ब्रांड कोलैबोरेट या करे आपके साथ में, देर आर सो मेनी वेज। बिल्कुल बट स्टिल टिल टुडे ऑल्सो वी वर रीचिंग आउट टू देम, वी आर, मतलब हमने भी अभी बहुत सारे लोगों को रीच किए थे जयपुर में, दिल्ली में, लेकिन दे सेड कह रहे हम तो डोनेशन करते हैं लेकिन हमें ये सब टाइम नहीं है हमारे पास, मतलब दे आर लिस्ट बॉर्डर। बिल्कुल सो वी सेड वी कांट force to them, and it is better to you just buy it and do it, whatever we are doing it, just do it, it is like so. So it was happening like that. तो स्क्रैप जो है कि आपको खरीदना पड़ता है कि यू गेट इट फॉर फ्री, हाँ हम खरीद के, yes we buy it, बट we buy it। उनके लिए अगर वेस्ट है तो वो फ्री में क्यों नहीं देते? नहीं मतलब अभी क्या होता है, उसमें भी वो लोग को चिंदी का पैसा मिलता ही है किलो के हिसाब से, राइट। वो तो ऐसे, और वो जो होता है ना, वो उनके नीचे की टीम वाले होते हैं, वो लोग बेचते ही है माल यूजुअली, और उसमें से उनको
पैसा मिलता ही है। और उसमें ये जो जो एक एक कंपनी है उसमें भी बहुत सारे टन्स के टन्स जब भी होलसेल में माल बनता है, तो एक एक टेम्पो भर के, ट्रक भर के, नॉट द टेम्पो, ट्रक भर के माल का स्क्रैप निकलता है। और फिर उसमें भी उनको 2,000 5,000 भी मिल गया तो वो लोग सोचते कि चलो 5-10 हजार भी आ गया तो एक जन का पगार निकल जाएगा, ठीक है करके वो लोग बेच देते हैं। लेकिन उसका क्या हुआ आगे क्या नहीं पता नहीं। अच्छा, और उसमें क्या होता है कि वो सब कुछ मिक्स होता है, कुछ भी मतलब वो कॉन्शियसली सेग्रीगेशन की कुछ नहीं होता है। अच्छा, अभी उसमें पोलिएस्टर कॉटन सब मिक्स हो जाता है, सब कुछ, राइट, इस तरह से। वो भी बात है। सो जब जैसे अभी मैं बना रही थी यहाँ पर, हम वो बनाते हैं ना अंदर कुछ भर के छोटे छोटे सॉफ्ट टॉयज, पिन कुशंस, वो सारा कुछ। हाँ, तो यहाँ पर मैं वही बना रही थी हाथ से, जो छोटे छोटे कटिंग्स थे, कुछ पुराना कुर्ता था उसके अलग अलग हार्ट शेप और वो सब काट के उसके अंदर उसी के बचे हुए जो चिंधियां थी उसको अंदर स्टफ करके उसके वो बना रही थी। सो मैं सोच रही थी कि ऐसी जो छोटी छोटी चिंधियां होती है जो कि कंप्लीटली लास्ट वो रहता है ना, जैसे गेहूं से लास्ट में मैदा निकलता है, तो हम उस मैदे का भी हम समोसे का वो बना लेते हैं, सकते हैं ना। हम लोग लास्ट तक वो करते हैं। तो हम कपड़ों के कटिंग के जो लास्ट स्क्रैप्स होते हैं उसको भी हमें प्रॉपरली ऐसे स्टेप वाइज बनाना चाहिए कि अगर आप ये मिलता है तो ये बनाओ, वो मिलता है तो वो बनाओ। yes, और वैसा ही हमारा सिस्टम होता है। यस, तो मैं तो आपसे सीखना चाहूंगी क्योंकि ऐसे ही हम उनको सिखाना चाहते हैं बच्चों को। डेफिनेटली। और इन लोग के साथ में जैसे कि आपने कहा, एग्री कि ये पॉलिसी होना चाहिए हर प्रोडक्शन हाउस के पास, हर मैन्युफैक्चरर के पास, कि आप स्क्रैप को कैसे यूज करोगे, बिकॉज जो प्रोड्यूस कर रहा है ईपीआर के हिसाब से उसी को उसका करेक्ट डिस्पोजल भी करना है, जो कि नहीं हो रहा है अभी। Exactly. तो अब आप बॉम्बे में हैं और बॉम्बे में हमारी सबसे बड़ी फिल्म और इंडस्ट्री है, फैशन इंडस्ट्री वहां पर है। तो आपको तो पता है कि फिल्मों में तो वो लोग एक बार जो पहन लेते हैं फिर वो ट्रेंड बन जाता है और फिर वो प्रोडक्शन में चले आता है और हर फिल्म में उनको नए नए पहनना है कपड़े। तो वो जो है उसके लिए व्हाट डू यू थिंक, क्या हमें करना चाहिए? हाउ कैन वी डू इट डिफरेंटली? वी शुड ऑल्सो गिव मैसेजेस टू द सेलिब्रिटीज एंड ऑल दीज इन्फ्लुएंसर्स, एग्जैक्टली, बिकॉज उन लोग की मदद से वो चेंज आएगा। राइट। So here I would like to shout out to the film industries and influencer, everyone, ki please try to support the sustainable fashions. Try not only the Banko Janko, but whatever the small or the big, help them. Then only you will help the community ki, to take the right choice, right decisions, right? And you will be the not influencer for the community, but you are the influencer of the planet. Yeah. So that is most important thing. Support the planet. You are the biggest influencer, I believe. कि मतलब जो धरती के लिए कुछ करेगा उससे बड़ा कोई इन्फ्लुएंसर ही नहीं है ना? तो क्यों नहीं, चलो हम साथ में मिलके धरती को ग्रीन बनाए, ऐसे होना चाहिए। एग्जैक्टली, या हर ब्रांड जब बोलता है कि सस्टेनेबिलिटी उनका गोल है तो यू शुड वॉक द टॉक। जो आप बोल रहे हो आपको करना भी जरूरी है, सिर्फ एक एड के लिए या मीडिया प्रमोशन के लिए वो करना एग्जैक्टली। और ऐसे नहीं कि रिपीट नहीं होना चाहिए। क्यों रिपीट नहीं होना चाहिए? तो मेरे जितने भी पिक्चर्स होंगे ना उसमें ज्यादा से ज्यादा जो भी मेरे जैकेट्स और सब कॉमन ही रहेंगे। तो एक जन ने बोला हाँ ये मैंने आपके पिक्चर में देखा था। मैं बोली देखा था, इसके लिए आज मुझे पहचाना कि मैं बंको जंको, राइट? तो मतलब वो मेरी आइडेंटिटी है ना। तो इस तरह से बोले हाँ रियली आपके जैकेट्स बहुत अच्छे होते हैं, ब्लेजर्स बहुत अच्छे, मतलब सी वो उनके माइंड में है, राइट? कभी फेस चेंज हो जाए, फेस समझ में नहीं आता है लेकिन वो कपड़े से समझ में आ जाता है। तो आप हर रोज चेंज ही करते रहोगे तो पब्लिक को भी याद नहीं रहेगा। थिंक ऑफ दैट, डोंट थिंक कि मतलब मैं नया नया पहनूंगा तो पब्लिक को लगेगा ये क्या अलग अलग पहन रहे, ऐसे नहीं होता है ऐसे। बिकॉज जितने बार वो अलग अलग पहनेंगे उतनी बार उनके फैंस को लगेगा कि ओ यही हमारे जो स्टार फॉलोइंग जो करते हैं कि वो इतना बदल रहे हैं हम भी बदलेंगे, उसके कारण वो एक यूज एंड थ्रो वाला आ जाता है। हो गया है। और हमारे
हमारे जो गारमेंट्स होते हैं ना, उसमें हम एक मैसेज देते हैं कि मतलब ये प्रोडक्ट यूनिक है। क्यों, कैसे यूनिक है? देखो, एक एक गारमेंट है, हमने स्क्रैप में से बनाया, तो उसके प्लेसमेंट सिमिलर होते ही हाँ नहीं है। हाँ, सबके प्लेसमेंट अलग होते हैं। जैकेट्स है, समझो ब्लू डेनिम कलर है, तो डेनिम है, लेकिन उसका प्लेसमेंट सिमिलर नहीं आएगा, हाँ बिकॉज वो स्क्रैप से। तो बिल्कुल वो एक यूनिक हाँ हो गया। सो गॉड हैज क्रिएटेड ए यूनिक, नो सेकंड पीस लाइक यू। तो हमारे गारमेंट भी ऐसे ही यूनिक। आप, आपके जैसा कोई नहीं, तो ये बंको जंको जैसा कोई नहीं है। मतलब दूसरा प्रोडक्ट नहीं, दूसरा सिमिलर नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली हम सबके पास दो आंखें एक नाक है, लेकिन फिर भी हम सब एक दूसरे से कितने अलग दिखते हैं। तो अलग रखते हैं, लव सी। इट, वेरी तो नाइस। ऐसे ही कि सिमिलर एक एक है, एक फर्मा है, एक, हाँ लेकिन मतलब एक बॉडी है, लेकिन पूरा उसका अलग है। उसी तरह से बंको जंको का भी ऐसा है कि आपको दो जन ने बंको जंको का पहना होगा, लेकिन वो प्लेसमेंट भी सिमिलर नहीं होंगे। सो एवरी ऑल द पीसेस आर यूनिक, और अभी हमारी वेबसाइट रीडिजाइन हुई है, तो इसमें मैं यहाँ पे जो भी देख रहे हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज डू रीच आउट, डू चेक आवर वेबसाइट। वी हैव नॉट ओनली अबाउट इट इज ओनली फैशन और सेलिंग और समथिंग, बट you will learn about how Banco Janko is positive footprints and circularity, working towards all that things. Secondly, we have a one बेस्ट थिंग, वी हैव स्टार्टेड अ ट्राइब अपसाइकलिंग। मतलब वो एक, हमने एक कम्युनिटी जैसा, मतलब ट्राइब, मतलब आप हाँ उसमें अभी जैसे ये टॉक है, तो हम वो हमारे कंज्यूमर को मैसेज देंगे कि भाई मतलब ये दिस टाइप ऑफ द टॉक इज देयर, इफ दे वांट टू अटेंड देयर इज, दैट इज देयर चॉइस, बट दे विल या कम टू नो, राइट? So like this, so we are making the like-minded communities, like-minded tribes, so they can get the more benefit from not only about the products, but also many learning and many opportunities, if there is any opportunities or something like that. So बहुत definitely do log into our Banko Janko website and do join our tribe. या And डेफिनेटली। secondly, when we were talking about the fashion industries and all that things, at that time, corporate also I was talking हाँ about, but forgot. So here I want to send the message to the corporates. Ki, do support the sustainability things. So now, the gift, we have Banko हाँ Janko has also started gifting options, या eco gifting या options, as we were already doing earlier, but we have not kept on the website. So we were doing the lanyards and so many या things for the green events, basically. या So just now we have done for the 200 millions people. Before that, we have done many times for the Aviskar groups, where their Africa events and so many. When you can see on their web page and everything, you see the different lanyards they wore on it. So it looks so beautiful. Otherwise, आप देखो ना कि मतलब lanyard तो यहाँ पे उनका कंपनी का नाम लिखा है, बस और ब्लू कलर तो ब्लू कलर, ब्लैक कलर, मतलब वॉट एवर। या तो एक में ये तो एकदम एकदम आर्टिस्टिक पीस है। सो यू लव इट कि मतलब हाँ, कितना अच्छा लग रहा है, यूनिक लग रहा है। सो दैट हैज ऑल्सो द कॉर्पोरेट्स हैज रीच आउट टू अस फॉर दिस ब्यूटीफul lanyards. दैट्स नाइस। And so there is so many things they can, and of course, so they, when they are supporting the sustainability and everything under their यस CSR, they are getting the benefit, they are reducing the carbon emissions. And secondly, the upcycling textiles, so in the upcycling, less consumptions of water, energy, everything is यस right. So what happens when you use the virgin textile, it requires the dyeing and everything. In the upcycling, you don't require all यस that thing, so you are saving lots of the carbon बिल्कुल footprints. बिल्कुल। और अभी तो हमें कार्बन फुटप्रिंट ही बचाना है। हमें Exactly. हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि कुछ भी हमने बढ़ाया, क्योंकि ऑलरेडी जो ग्रीन हाउस गैसेस और बाकी जो हमारा कंजम्पशन, ओवर कंजम्पशन हर जगह है, उसको हम कैसे रिडक्शन में लाएं, दैट्स आवर प्राइम गोल, प्राइम Right, ऑब्जेक्टिव। right. So Together, all of us together has to do, exactly, yeah. and then only we can. I believe that I always tell people together we can and we will. And वही मैं चाहती हूँ कि सब लोग आज सीखें कि अगर आप अपसाइकलिंग भी करना चाहते हैं, और अगर पुराने फैब्रिक्स हो, या लास्ट वीक हमारे जो गेस्ट थे वो जयपुर से आई थी, शी इज एन डिजाइनर अगेन, लेकिन वो
इंटीरियर और डेकोर ऐसे बनाते हैं, तो वो इंडस्ट्रियल वेस्ट को रीपर्पस करके उससे बेंचेस और बहुत सारी चीजें बना रहे थे। सो हर एक चीज को अगर हम रीपर्पस वाले एंगल से देखें तो आई थिंक हमारे लाइफ का पर्पस हाईलाइट हो जाएगा। एग्जैक्टली आपने जो बोला, इसके लिए मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ सबको, कि मेरा खाली नॉट ओनली इट इज लाइक दैट रिलेटेड टू द टेक्सटाइल, बट दिस इज माय पेशेंस एंड आई विल शो यू वन ब्यूटीफुल वॉल दैट इज इन माय हाउस। सो आई कैन सी कि आप कहीं पे गए हैं दूसरे कमरे में। हाँ, सो नाउ सी दिस वॉल, वाओ, this is upcycle wall. If you can guys can see the full wall. yes, See, right? yes, So this is totally the upcycle. So you know, my not only the textile things, my bed sheets, my headboards, everything is upcycle. बहुत ही So बढ़िया। see, this is the city, Are and these yeah, this is frames? also. ये क्या फ्रेम्स हैं? Which one? You So now see, this is a wall. This is a wall we have created, and in that this is all the carving pieces, and this all carving pieces. This is a ring, and these frames जो आप देख रहे हैं ना, वो मेरे जूने घर में ऐसे फ्रेम्स थे जो काम के नहीं थे, एक्चुअली वो थ्रो ऑफ होने वाले थे, तो उसको हमने पूरे इसमें इस तरह से पूरे डिजाइन किए, और ये पूरा मैंने और मेरी डॉटर ने मिल के पूरा ये डिजाइन किया है, यू नो। बहुत ही सुंदर लग रहा है, इट्स सो ब्यूटीफुल। सी आप, you are one of those change makers who's walking the talk, so you know you're doing it in your real life. So और भी मैं एक और भी चीज, मतलब why I am showing it, कि मतलब ऐसे नहीं होता है, जो करना है ना तो सब में कर सकते हैं, राइट? इस तरह से कहीं पर भी कर सकते। तो अभी एक और चीज बता रही हूँ, सब लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, बाय द वे इसके आप जो लिए दिखा रहे हैं। ये जो है ना, ये जो सब जो हमारे घर में काम हुआ था, तो उसमें जो भी वॉल जो वुडन के पीसेस बच गए थे पूरे, तो उसमें से हमने ऐसे वॉल आर्ट क्रिएट कर दिया। वाओ, सी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। नाउ यू कैन सी दिस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक पूरी एक वॉल थी कि जो एक्चुअली इसमें क्या था, ये वॉल में खाली एक इलेक्ट्रिक का मीटर लगा हुआ था बेसिकली, तो उसमें हमने ये कर दिया था इस तरह से। फिर मेरा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो मेरे घर के मतलब मेरे एंट्रेंस में बनाया हुआ है। थैंक यू हमको ये दिखाने के लिए, थैंक यू सो मच, आई रियली लव इट। सी दिस, यू कैन सी, ये जो पीसेस है ना सब, ये पूरे हमने स्क्रैप में से लिए थे, ये पीछे भी टूटा फूटा है, सब कुछ है, हमने पीछे से काट के सीधा करवा दिया, और ये सब पीसेस वुडन के हमने पूरे स्क्रैप में से लिए थे। अमेजिंग। और उसमें से हमने ये पूरा बनाया, यू नो, इस तरह से एकदम। सो फिर ये नेम प्लेट वो भी इसी तरह से शानदार। अच्छा, ये सब मैंने उसके पास में ये जो कार्विंग वाले यहाँ पे जोगेश्वरी में है, तो उनके पास से, और ये जो देख रहे हो ना, यूजुअली हम लोग इसमें ऐसे यूज नहीं करते, शू रैक का है, तो यूजुअली उसमें एयर पासिंग के लिए जाली और सब यूज होता है, तो हमने ये यूज किया है, तो इसमें से एयर पास हो सके इसके लिए। ब्यूटीफुल। कितने हमें सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी यूज करनी है, उसके बाद में देयर इज नो लिमिट। तो इस तरह से मतलब ऐसा है ना कि फन होता है, यू लव इट, यू नो, इस तरह से। यस, एंड हम सबको बड़ा मजा आया, वी ऑल लव इट। एंड इको सवेरा पूजा बहल इज आस्किंग यू कि सूरज कुंड फेस्टिवल में आप आइए फरीदाबाद में बंको जंको के साथ। ओह वाओ, थैंक यू, या वुड लव टू। फरवरी में होता है, तो अब नेक्स्ट ईयर होगा, तो इट विल बी ग्रेट, इट्स अ वेरी नाइस। एंड देन जयपुर में भी देयर इज अ ग्रुप ऑफ विमेन जिसमें बहुत सारे लोग अपसाइकलिंग कर रहे हैं, फैब्रिक्स में काम कर रहे हैं, तो हम नेक्स्ट ऐसा कभी सेशन करेंगे जहाँ पे हम आई थिंक फैब्रिक रिसाइकलिंग के बारे में ही फोकस करके सबको बुलाएंगे, एंड देन यू नो दैट विल बी अ फन। चलो, we'll do that, yes, definitely, and we would love to collaborate with them, any of them, anyone would love to connect with us, do connect with us, we'll share our contact details in this, and they can definitely connect with us, so
they can reach out to us. यस आप अब हमारा टाइम हमने तो ऑलरेडी अपना टाइम मतलब हम एक्सटेंड कर लिया है, लेकिन I know. अगर आप बहुत ही अच्छा लगा, हमें पता भी नहीं चला समय के बारे में, बट वुड यू लाइक टू गिव एनी मैसेज टू अ कंज्यूमर जो कि जो प्रोडक्शन नहीं करता, जो कॉर्पोरेट नहीं है, जो फैशन डिजाइनर नहीं है, हम ये मान के चल रहे हैं कि जितने भी लोग आज यहाँ पे हमारे कॉन्वर्सेशन को सुन रहे हैं वो सारे सिर्फ कंज्यूमर्स हैं, तो कंज्यूमर्स क्या कर सकते हैं टू ब्रिंग द चेंज? आप अगर कुछ कहना चाहते हैं उनको। जो कंज्यूमर हैं उनको मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि बी अ कॉन्शियस कंज्यूमर, buyer and user. So when you are buying the product, you ask why, means why I am buying it, when I'm going to use, when, and how I'm going to end of this product. So that is most important things. कि बी ए कॉन्शियस कंज्यूमर, फर्स्ट ऑफ ऑल वो बहुत जरूरी है कि मुझे क्लियरली कितनी जरूरत है, मैं क्यों बाय कर रही हूँ, और इसके बाद ये प्रोडक्ट का मैं क्या करने वाली हूँ, राइट? कि मैं या तो किसी को दूं या कोई पहनेगा तो भी अच्छा है, नहीं पहनेगा और थ्रो कर देंगे तो कहाँ थ्रो कर रहे, वो डिस्पोज ऐसे ही नहीं करे हम कि इसका यूटिलाइज हुए। कितने लोग हैं, कितने मतलब आज मेरे पास जो भी है वो भगवान ने दिया हुआ, अच्छा चलो गुड थिंग्स, लेकिन इसके बाद जिनके पास नहीं है उसको कुछ बेनिफिट मिल सके, इस तरह से कोई कुछ भी मतलब अच्छी तरह से मेनली बी अ कॉन्शियस कंज्यूमर एंड नथिंग एल्स। ये कैसे बनाए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे बनाए, कहाँ बनाए। बेसिकली नाउ द पीपल आर सेंडिंग इट, कि मतलब ये प्रोडक्ट यहाँ से बना है, सो लर्न अबाउट द स्टोरीज एंड एवरीथिंग, सो यू विल कम टू नो मोर। द साइकिल, द प्रोडक्ट साइकिल, लोग आजकल उसके बारे में अपने वेबसाइट में लिखते हैं, तो सर्कुलरिटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। बिल्कुल सही कहा। कहाँ से बनाए, कैसे बनाए और कैसे एंड होगा, एंड हमें पता रहना जरूरी है। हम ये नहीं बोल सकते जरूरी है, यस, क्या वो लैंडफिल में जा रहा है, वो हमें सबसे पहले पूछना है, राइट? और वो लैंडफिल में तो हम ही डाल रहे हैं बेसिकली, राइट? हमने यूज किया, हमने किधर भी फेंक दिया, चलो हमें इंटरेस्ट ही नहीं है, ऐसे हो जाता है। पहले के जमाने में क्या था, वो बर्तन वाले आते थे तो मम्मी लोग थे वो बर्तन वाले को देते थे, एक डब्बा लेते थे, अभी तो वो भी नहीं है कुछ। वैसे छोटे सिटीज में अभी भी वो हैं, वो लोग अभी भी आते हैं, लेते हैं। तो ये जो लैंडफिल में जाने की आदत है या फेंकने की आदत है, वो ज्यादातर आई वुड से बड़े सिटी जिनके सिटीज में ज्यादा है। इट इज एन अर्बन मेट्रो काइंड ऑफ प्रॉब्लम, जहाँ पे वो बहुत ही कॉन्शियस तरीके से, कॉन्शियस मतलब नॉट द सस्टेनेबल कॉन्शियस, बट फास्ट फैशन, फास्ट लाइफ कॉन्शियस तरीके से जीते हैं। तो मीडिया कॉन्शियसनेस, यू कैन से मीडिया कॉन्शियस, एग्जैक्टली। तो वो जो है ना, उनको कॉन्शियसनेस का ट्रैक बदलना होगा, सस्टेनेबिलिटी कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है। बस मीडिया में से सस्टेनेबल में आ जाओ, बस खाली कॉन्शियस रहने दो। एग्जैक्टली। सो थैंक यू सो मच भाविनी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने मिला, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली नेवर गिव अप जो है, हम बोलते हैं जो एटीट्यूड, वो आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने लाइफ में उसको दिखाया है हमको कि कैसे हम कर सकते हैं। एंड कोई भी जन अगर सस्टेनेबिलिटी के रास्ते पे चलना चाहता है तो उन्हें याद रखना होगा कि इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, बट यू कैन डू इट। Do it, yes. So, yes, exactly. तो हमेशा एंड क्या होगा वो सोचो और उस हिसाब से खरीदो, कंज्यूम करो। एंड बहुत सारे एनजीओज हैं जो लोगों को कपड़े दे देते हैं, लेकिन हमने ये एंड वी ऑल्सो कोलैबोरेट विद द एनजीओज, दोज हु वांट, कि मतलब हमारे पास ऐसे इंक्वायरीज आती है कि मतलब आप यूज्ड क्लोथ लेते हैं, हम बोलते हैं हम नहीं लेते, बंको चंको डोंट यूज द यूज्ड क्लोथ, बट या वी हेल्प देम टू कनेक्ट विद सम एनजीओज कि उनको डाइवर्ट कर देवे और वो लोग को मतलब यूटिलाइज कर सकते हैं इस तरह से। तो बेसिकली बंको चंको इज अबाउट प्योरली अबाउट द प्री कंज्यूमर टेक्सटाइल, बट डेफिनेटली एज वी आर वर्किंग इन circularity, we also have the another design like social welfare foundations. Through that we support the connecting with the NGOs and we help them to, और किसी को चाहिए कि हमारे पास ऐसी साड़ी है उसमें से हमें कुछ बनाना है, तो हम नहीं बनाते, बंको जंको doesn't make, but yeah,
Design Life Social Welfare Foundation help to connect with these girls or women, those who can make it and they can generate the income like that. Yeah, that is what we are also trying to do कि हम cities से collect करते हैं लोगों के पास से जो extra है उनका अच्छा, जिसकी वो जो यूज नहीं करते, चाहे वो बुक्स हो, शूज हो, गेम्स हो, कपड़े हो, यूनिफॉर्म्स हो, क्योंकि यूनिफॉर्म्स ही बहुत रहते हैं, एंड देन वी सेंड इट टू द ट्राइबल चिल्ड्रन जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं है, राइट। अच्छी क्वालिटी में अगर आपका कोई यूज किया हुआ भी सामान रहता है तो वो उनके लिए नया ही होता है, बिकॉज यू नो जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके लिए दिस इज अ गिफ्ट। बहुत ही बढ़िया है और ये तो बहुत ही जरूरी है कि जिनको नीड है उनके पास राइट टाइम पे पहुंच जाएगा। सो अभी हम लोग अब रेन तो खत्म ही हो गई है, लेकिन अब हम विंटर की चीजों के लिए शुरू करेंगे कि अगर आपके पास यूज्ड या जैसे पुराने हो गए शॉल्स या ओढ़न, यू नो, ऑल डेफिनेटली वी आर आल्सो गोइंग टू हेल्प यू टू रन दिस ड्राइव। Thank you so much. So it is our pleasure. We shall say bye to each other and thank you to all our thank you and thank you lovely audience. And let's walk with Banko Janko and my best these things together for the greener future. Okay, we shall. Take care. Bye Bhavini. Take bye care. bye Nice. Bye. Thank you so much. Bye. Same here.